Good morning students, welcome you on your online class of English, and today's video I shall explain you about the chapter. In yesterday video, in previous video I have explained you about the summary of Attila, and in this video I will explain you the chapter with your textbook about Attila and what was his works for his family was very worried for Attila. So let's start today's topic, and remember beta, it is your revision class. So let's start today's topic from the characters of the family, the characters of the story. There are three characters: mother, the eldest son, and the youngest son. There are three main characters in the story: the mother, eldest son, the youngest son. Now beta, Attila. Attila is the name of a dog in the story. Story में एक dog का name है बेटा Attila. This story is written by R.K. Narayan. R.K. Narayan was an Indian writer and was born in Chennai in India. He was very famous for his works like Malgudi, The Guide, The English Teacher, Swami and His Friends, and other. He is a great novelist and short story writer, and this story is short story. R.K. Narayan was very famous for his novels, and his best novel was is The Guide. He was awarded from Padam Bhushan and Padam Vibhushan both. Now beta, in the summary of Attila, Attila is the name of a dog, and this name is taken from the warrior of Europe. ये जो Attila नेम है बेटा, ये यूरोप के एक वॉरियर के नेम से लिया गया है. उससे इंस्पायर होकर इस डॉग का नेम क्या रखा गया है? Attila रखा गया है. Attila is actually the name of the guard dog of a family. The family is worried that their dog might be not a good security guard. और फैमिली को ये भी वरीड है, एनेक्सिस है वो फैमिली क्या अबाउट डॉग, दैट देयर डॉग माइट बी नॉट अ गुड सिक्योरिटी गार्ड. दे हैव entrusted him with the role of protecting their property in their absence. However, Attila has turned out to be a pet dog with very timid and jealous nature. Means beta, the family accepted that Attila became a dangerous and strength became in dangerous and strength dog, but Attila was timid and jealous nature. But the youngest son of the family is on supporting the innocent dog. But the youngest son of the family is on supporting for the innocent dog and likes to think to him to be an actual god dog. Beta, in summary of Attila, Attila is the name, as you know, Attila is the name of a watchdog. जैसा कि आप जानते हैं कि Attila एक watchdog का नेम है. The family bought him to save them from being theft. जो फैमिली है उसको लेकर आई थी चोरी से बचने के लिए. There was a series of thefts in their neighborhood, so the family bought him with full hope that he would protect him. He was only 2 months old when he was brought home. The family eyed that he would become a dangerous dog. But with the passing of time, with
with warmth. One day a thief named Ranga entered in the house. एक दिन क्या हुआ कि रांगा नेम का बेटा एक चोर था, वो घर में घुस आया, एंट्री कर गया घर के अंदर। When जो thief था, the thief had stolen the valuable jewelry of the house. When the thief saw Attila, he became nervous, but Attila did not bark. Attila started to follow him. Attila ने उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, because it was the great desire of Attila. It was the great desire of the dog in life to wander in streets freely. क्योंकि बेटा जो डॉग था उसकी लाइफ की बहुत बड़ी एम्बिशन थी, वो दिल से चाहता था कि वो अपनी लाइफ में गलियों में आराम से घूमे विदाउट बाउंडेशन। Now the disappearance of the dog in the family made everyone shocked. It created a sensation in the family because the dog was disappearance. The dog was missed in the family. The family members reacted very badly. The eldest son of the family saw the dog walking on the road behind the thief Ranga. When the eldest son called Ranga, he began to run. जब रांगा को आवाज लगाई एल्डेस्ट सन ने, तो उसने भागना स्टार्ट कर दिया। And seeing Ranga to run, जब रांगा को दौड़ता हुआ देखा, the dog also ran after him. तो डॉग भी उसके पीछे भागने लगा। The dog also ran after him. Ranga stumbled over the dog and fell on the ground. And the piece of jewelry came out from his hand. जो ज्वेलरी थी, वैल्यूएबल ज्वेलरी उसके हाउस की, वो उसके हाथों से गिर गई। The man caught Ranga. This incident made Attila hero at the end of the story. Now, beta, this is the summary of the story, but I shall explain you the chapter with textbook. So let's start your chapter. Now beta, can you identify this image? Yes, R.K. Narayan, who is Indian writer. So this picture is of R.K. Narayan. Now beta, it is the biography of R.K. Narayan. As you know very well about R.K. Narayan. R.K. Narayan in full Rashipuram Krishnaswamy Narayan means बेटा R.K. Narayan का जो फुल नेम था वो राशीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण था। ओरिजिनल नेम राशीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण स्वामी, बट इन शॉर्ट वी called him R.K. Narayan. He was born on 10 October 1906 in Madras. He was born on 10 October 1906 in Madras, Chennai, in India, and he was died on 13 May 2001 in Madras. One of the finest Indian authors of his generation writing in English, and he was known for his short stories and novels, and his famous novel are The Guide, The English Teacher, Swami and His Friends, etc. As you know beta, the family wanted a strong and formidable dog who could prevent break-ins and theft in their house. Now in the chapter, the family wanted a strong and formidable dog. Formidable means beta dangerous dog who could prevent break-ins and theft in their house. जो उनके घर में theft को रोक सके, चोरी को रोक सके. A 2-month-old black and white puppy was brought home. A 2-month-old black and white puppy was brought home. 2 महीने का पपी था. पपी बोलते हैं बेटा डॉग के बच्चे को. तो पपी was brought home
He was named Attila after the Scrolls of Europe. Scrolls of Europe is considered god of Europe. He had square jaws, red eyes, a pug nose, and massive head. He gave no hope that he would do credit to his name. मतलब उससे कोई भी आशा नहीं थी कि शायद वो अपने नेम को कोई क्रेडिट देगा. The puppy, as I have already indicated, did not have a very prepossessing. Prepossessing means charming. He did not have a very charming appearance and was none too playful, but this did not prevent his owners from sitting in a circle around him and admiring him. Means family was very excited for his puppy, and the family members always admiring him. There was a prolonged debates as to what he should be named. Prolonged means beta continued for a long time. Continued for a long time. Debates as to what he should be named means उसका नेम क्या रखा जाए, इसके लिए बहुत लंबा डिस्कशन फैमिली में चलता रहता था. द यंगेस्ट सजेस्टेड वाई नॉट कॉल हिम टाइगर. एवर अदर स्ट्रीट mongrel is named tiger, came the reply. Means tiger is not a appropriate name for the puppy. Why not Caesar? Caesar, if a census was taken of dogs, you would find at least 15,000 Caesar in South India alone. Means Caesar is not be suitable for the puppy. Now tiger and Caesar both name are were rejected by the family members for his puppy. Why not fire? It is fantastic. No. Why not thunder? It is not suitable. It is too obvious. Grip, still obvious and childish. There was a deadlock. Some suggested Attila. अब बेटा फैमिली में बहुत ज़्यादा ही नेम्स को बताया गया, बट any name was suitable for the puppy. Tiger, Caesar, fantastic, fire, grape, all are rejected by the family. At last someone suggested Attila, and a shout of joy went up to the skies. Means shout of enjoy. The cries of joy was so loud that it can be heard to the sky. No more satisfying name was thought for man or animal, but as time passed, our Attila exhibited a love of humanity which was sometimes disconcerting. The Scrolls of Europe, could he ever have been like this? They put it down to his age. What child could help loving all creatures? In their zeal to establish this fact, they went to the extent of delving into ancient history of find out what the Scrolls of Europe was like when he was a child. Means beta, the family members are trying hard to find out more information about something. Means delving means beta trying hard, feel hard to find out some information about something. The family members wanted some information about Attila, who was the warrior of Europe, and the more information they wanted about him when he was a child. He was rumored that as a child he clung to his friends and to his parents. मतलब ऐसी एक अफवाह फैली हुई थी कि जब वो वारियर, यूरोप में जो वारियर था अटीला नेम से, जब वो छोटा बच्चा था तो अपने फ्रेंड्स से और अपने पेरेंट्स से ऐसे चिपक जाता था, फ्रेंड्स सो फास्ट दैट ऑफन ही हैड टू बी बीटन एंड सेपरेटेड फ्रॉम देम, कि उसको बहुत तेज़ी से खींचना पड़ता था या फिर उसको बीटन मतलब खींच कर अलग किया जाता था. बट व्हेन ही वॉज 14 ही शोड द फर्स्ट साइन ऑफ हिज फ्यूचर. लेकिन जब वो 14 साल का हुआ तो उसने अपने फ्यूचर के कुछ सिम्टम्स दिखाए. कुछ ऐसे सिम्टम्स उसमें दिखने लगे कि हाँ ये फ्यूचर में जाके बहुत ही
क्या बनेगा, बहुत ही करेजियस बनेगा। ही नॉक्ड डाउन अ फेलो हु, बेटा नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉरियर ऑफ यूरोप, नॉट अटीला हु वॉज अ पैट पपी। यस, डिफरेंस है बेटा, मैं यहाँ पर वॉरियर की बात कर रही हूँ जो यूरोप का था, ना कि अभी मैं अटीला की बात कर रही जो एक पैट है। ही नॉक डाउन अ फेलो हु ट्राइड टू टच हिज मार्बल्स, दिस वॉज एनकरेजिंग, लेट अवर डॉग रीच द पैरल ऑफ 14 ईयर्स एंड पीपल वुड गेट टू नो हिज रियल नेचर। मीन्स यहाँ पर अब फैमिली ये समझने लगी थी कि जब हमारा डॉग भी 14 ईयर्स का हो जाएगा, मीन्स जब यंग हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, व्हेन ही ग्रू ओल्ड, जब वो बड़ा हो जाएगा तो अदर मेंबर्स जो हैं, मीन्स जो स्ट्रेंजर्स हैं, वो भी उसके रियल नेचर को समझने लगेंगे। बट दिस वॉज अ वेन प्रॉमिस, लेकिन ये प्रॉमिस जो था वो प्रूव नहीं हुआ। ही स्टूड अप 20 इंचेस हाई, हैड अ लार्ज फ्रेम एंड अ फॉरबिडिंग अपीयरेंस ऑन द होल। मीन्स क्या है बेटा कि वो अभी 20 इंच हाई हो चुका था, लार्ज फ्रेम मीन्स उसकी बॉडी काफ़ी लार्ज थी, एंड अ फॉरबिडिंग अपीयरेंस ऑन द होल, और उसकी अपीयरेंस कैसी लगने लगी थी, डेंजरस। बट डैट वाज ऑल, बट इट वाज ओनली फॉर शो, ये केवल देखने के लिए था, नॉट इन हिज बिहेवियर, ये उसके बिहेवियर में नहीं था। अ वेराइटी ऑफ पीपल एंटर द गेट्स ऑफ द हाउस एवरी डे, मीन्स बहुत सारे लोग घर में अंदर एंट्री करते थे, लाइक मेंडिकेंट्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेंडिकेंट्स बेटा? मेंडिकेंट्स आर कॉल्ड फॉर बेगर्स, bill collectors, postmen, tradesmen, and family friends. All of them were warmly received by Attila. ये सभी बहुत ही वार्मली मीन्स स्वागत के साथ अटीला के द्वारा इनको अंदर ले जाया जाता। द मोमेंट द गेट क्लिक्ड ही बिकेम अलर्ट एंड स्टूड अप लुकिंग टुवर्ड्स द गेट। उस पल जब गेट पर कोई क्लिक करता वो अलर्ट हो जाता और गेट की तरफ देखने लगता। By the time anyone entered the gate, Attila went blindly charging forward. लेकिन जब कोई गेट के अंदर एंट्री करता तो अटीला उसकी तरफ ब्लाइंडली मतलब अंधों की तरफ भागता। बट दैट वाज ऑल, लेकिन बस इतना ही था। द पर्सन हैड ओनली टू स्टॉप एंड स्माइल, पर्सन को केवल रुकना था और हंसना था। एंड अटीला वुड मेल्ट, और इतने में अटीला क्या हो जाता, पिघल जाता। ही वुड बिहेव as if he apologized for even giving an impression of violence. He would lower his head, curve his body, tuck his tail between his legs, roll his eyes, and moan as if to say, how sad that they should have mistaken my gesture. मीन्स बेटा यहाँ पर he would behave, जो अटीला है वो ऐसे बिहेव करता जैसे उससे बहुत बड़ी गलती हो गई और वो उसकी माफ़ी मांगना चाहता है। वो अपने सिर को नीचे झुका लेता, अपनी बॉडी को फोल्ड कर लेता, टक हिज टेल, अपनी पूंछ को नीचे कर लेता, बिटवीन हिज लेग्स, अपने पैरों के बीच में, रोल हिज आइज, अपनी आँखों को झुका लेता, एंड मून एज इफ़ टू से, और ऐसा लगता मानो वो ये कहना चाहता है, हाउ सैड दैट ही शुड हैव मिस्टेकन माई गेस्चर, कि कितनी दुख की बात है आप मेरे गेस्चर से, मतलब मेरे बिहेवियर से इतना परेशान हो गए, मैंने ये गलती कर दी। आई ओनली हरीड डाउन टू ग्रीट यू, मैं तो केवल आपको जल्दी से ग्रीट करना चाहता था। टिल ही वॉज पैटेड ऑन द हेड, स्ट्रोक्ड एंड टोल्ड दैट ही वॉज फॉर गिवन, ही वुड बी इन एक्सट्रीम मिजरी, और जैसे ही कोई उसके सिर पर हाथ पैट कर देता तो उसे ऐसा लगता जैसे उसको माफ़ कर दिया गया है। ही वुड बी इन एक्सट्रीम मिजरी, और जब तक ऐसा कोई नहीं करता वो बहुत बड़े दुख में रहता। मिजरी मीन्स शॉरो, पेन। ग्रेजुअली ही रियलाइज दैट हिज बाउंसिंग एडवांसेस कॉज्ड मच अनहैप्पी मिसअंडरस्टैंडिंग। Gradually he realized that his bouncing advances caused much unhappy misunderstanding. सामान्यतः उसको जो अटीला है उसको ऐसा रियलाइज़ होता कि उसके ऐसे बिहेवियर से जो स्ट्रेंजर्स हैं उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। एंड सो व्हेन ही हियर द गेट क्लिक ही हार्डली स्टायर्ड,
He merely looked in that direction and waved his tail. तो फिर इसके बाद आफ्टर इट बेटा he only alighted to hear the knock of the gate, but he had no reaction. He only looked in the direction of the gate and waved his tail. The people at home did not like this attitude very much, and the family members did not like his behavior very much. They thought it rather a shame. They felt that it is a shame that he is not dangerous and he did not bark at strangers. Why not change his name to Blindworm? Somebody asked. In the family, somebody said, why not change his name? They put his name Blindworm at the place of Attila. He eats like an elephant, said the mother of the family. Family में जो माँ थी उन्होंने कहा कि वो एक एलिफेंट की तरह खाता है. You can employ 2 watchmen for the price of the rice and meat he consumes. जो राइस वो खाता है और जो मीट कंज्यूम करता है मीन्स खाता है, उतने पैसों में आप 2 एम्प्लॉयज़ या फिर 2 वॉचमैन रख सकते हैं. Somebody comes every morning and steals all the flowers in the garden. Every morning somebody come in the garden and steals flowers, but Attila did not work. Attila did not do anything about it. Means क्या है, फैमिली का जो गार्डन है वहाँ पर डेली एवरी मॉर्निंग कोई ना कोई आता है और वहाँ के फ्लावर्स को चोरी कर ले जाता है. लेकिन Attila did not work and Attila won't do anything about it. Attila इसमें कुछ भी नहीं करता. He did not work at all. He has better business to do than catch flowers thieves, replied the youngest, always the defender of dog. And the youngest son, who was the defender of dog, replied that he has better business to do than catch flowers thieves. What is the better business? The mother asked. माँ ने पूछा. यहाँ पर बेटा यंगेस्ट सन है, उसने रिप्लाई किया है कि हो सकता है अटीला के पास इससे अच्छा कोई काम हो फ्लावर थीप को पकड़ने से. तो मदर फेल्ट एंग्री. यहाँ पर मदर को थोड़ा सा गुस्सा आया और उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द बेटर बिजनेस? वेल, इफ़ समबडी कम्स इन एट डॉन एंड टेक्स अवे द फ्लावर्स. मीन्स यहाँ पर वो कह रही हैं कि वेल इफ़ समबडी कम्स इन एट डॉन एंड टेक्स अवे द फ्लावर्स मीन्स somebody comes in the morning and stole the flowers. हर रोज़ कोई ना कोई आता है और फ्लावर्स को ले जाता है. डू यू एक्सेप्ट अटीला टू बी लुकिंग आउट फॉर हिम इवन एट दैट आवर? और आप कहना चाहते हो कि उस पल अटीला किसी अदर बिजनेस में बिजी रहता है. ही वॉज बिजी इन अदर बिजनेस. वाई नॉट? क्यों नहीं? इट्स वॉट अ वेल फेड डॉग और टू बी डूइंग इंस्टीड ऑफ स्लीपिंग. अब यहाँ पर वो बता रहा है, जो यंगेस्ट सन है वो कह रहा है कि इट्स वॉट अ वेल फेड डॉग. ये बहुत ही अच्छा खाने वाला डॉग है. मीन्स इसकी डाइट जो है वो बहुत ही अच्छी है, गुड है. और टू बी डूइंग इंस्टीड ऑफ स्लीपिंग, क्यों ना वो उस समय स्लीपिंग कर ले मीन्स सो जाए. यू ऑट टू बी असेम्ड ऑफ योर डॉग मीन्स उसको इतना, यहाँ पर जो मदर है वो रिप्लाई कर रही हैं कि वो इतना अच्छा खासा खाता है और उसको घर की लुकिंग आफ्टर करने की प्लेस पर, मतलब वो घर की रखवाली करने के प्लेस पर क्या कर रहा है, सो रहा है. आपको अपने डॉग पर शर्म नहीं आती? यू ऑट टू बी असेम्ड ऑफ योर डॉग. आपको अपने डॉग पर क्या आना चाहिए, शर्म आनी चाहिए. ही डज नॉट स्लीप ऑल नाइट मदर. तो यहाँ पर बेटा यंगेस्ट सन है वो रिप्लाई कर रहे हैं. यंगेस्ट सन ने रिप्लाई किया है ही डज नॉट स्लीप ऑल नाइट मदर. मदर वो पूरी रात नहीं सोता. आई हैव ऑफन सीन हिम गोइंग अराउंड द हाउस. मैंने अक्सर उसको घर के चारों तरफ घूमते हुए देखा है. एंड वॉचिंग ऑल नाइट, और पूरी रात रखवाली करता है. रियली? डज ही प्राउल अबाउट ऑल नाइट? वास्तव में? डज ही प्राउल? प्राउल मीन्स बेटा गोइंग अराउंड द हाउस मीन्स वॉचिंग द हाउस ऑल नाइट. क्या वो पूरी रात घर की रखवाली करता है? प्राउल मीन्स स्लिंक. वी कैन से स्लिंक, प्राउल. ऑफ कोर्स ही डज. हाँ वो ऐसा ही करता है. सेड द डिफेंडर. रिप्लाइड द डिफेंडर. डिफेंडर, हु इज़ डिफेंडर? द यंगेस्ट सन ऑफ द फैमिली. तो यंगेस्ट सन है वो कह रहा है कि हाँ वो ऐसा ही करता है. ही डज नॉट स्लीप द होल नाइट. आई एम क्वाइट अलार्म्ड टू हियर इट, सेड द मदर.
अब मदर यहाँ पर कह रही हैं कि मैं यह सुनकर बिल्कुल क्या हूँ, अलार्म हो गई हूँ। प्लीज़ लॉक हिम अप इन अ रूम एट नाइट। प्लीज़ उसको क्या कर दिया करो, नाइट में लॉक कर दिया करो एक रूम में। अदरवाइज़ ही मे कॉल इन अ बर्गलर एंड शो हिम राउंड। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो किसी बर्गलर को अंदर आने देगा और पूरा घर दिखा देगा। लेफ्ट एलोन अ बर्गलर माइट आफ्टर ऑल बी लेस सक्सेसफुल। और अकेला बर्गलर एंट्री कर जाएगा और पूरा घर आराम से वो क्या कर ले जाएगा, यहाँ वैल्यूबल थिंग्स को स्टोर कर लेगा। इट वुड नॉट बी सो बैड इफ़ ही एट लीस्ट वार्कड। और वो क्या नहीं करेगा, वो वार्क भी नहीं करेगा। ही डिड नॉट वार्क टू सी द बर्गलर। ही इज़ द मोस्ट नॉइजलेस डॉग आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ बिकॉज ही इज़ द मोस्ट नॉइजलेस मीन्स वो कभी वार्क करता ही नहीं। ऐसा डॉग मैंने लाइफ में पहली बार देखा। आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ लाइक दिस डॉग। द यंग मैन वॉज एक्सट्रीमली इरीटेटेड एट दिस। यह सुनकर जो यंग मैन था वो काफ़ी इरीटेट हो गया। ही कंसिडर्ड इट टू बी द मोस्ट अनचैरिटेबल सिनिसिज्म। सिनिसिज्म बेटा डिस्ट्रस्ट, क्योंकि उसे ऐसा सुनकर विश्वास नहीं हुआ कि उसका डॉग ऐसा भी हो सकता है। बट द डॉग जस्टिफाइड इट दैट वेरी नाइट। लेकिन डॉग ने इस बात को दूसरी रात में ही, मतलब उसी रात को ही, दैट नाइट, उसी टुडे नाइट को ही, उसी रात को ही उसने इस बात को प्रूव कर दिया। रांगा लिव्ड इन अ हट। रांगा एक हट में रहता था 3 miles फ्रॉम द टाउन, जो टाउन से 3 मील दूर थी। ही वॉज अ गैंग कुली। वह एक मजदूर कुली था। ऑफन एम्प्लॉयड इन रोड मैंडिंग, जो रोड मैंडिंग का वर्क होता है, रोड बनता है, कंस्ट्रक्शन वर्क, उसमें काम करता था। ओकेजनली एट नाइट्स ही एन्जॉयड द थ्रिल एंड प्रॉफिट ऑफ ब्रेकिंग इनटू द हाउस। और अवसर मिलने पर रात को वो घर में घुसकर चोरी कर लेता था और इसका आनंद उठाता था। एट 1 o'clock एट दैट नाइट रांगा रिमूव द बार्स ऑफ अ विंडो ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द हाउस। रात को 1 बजे उसने रांगा ने घर की खिड़की खोली ईस्टर्न साइड से और वो घर के अंदर स्लिप कर गया। ही एज्ड अलोंग द वॉल, दीवार के सहारे धीरे से। सर्च ऑल द ट्रंक्स एंड अलमिराज इन द हाउस। उसने घर की सभी अलमिराज को क्या कर लिया, सर्च कर लिया। ही एज्ड अलोंग द वॉल, searched all the trunks and almirahs in the house and made a neat bundle of all jewelry and other valuables he could pick up। और उसने बहुत ही अच्छा वैल्यूबल ज्वेलरी का और अदर थिंग्स का, जो वैल्यूबल थिंग्स थी घर के अंदर, उन सभी का अच्छा खासा बंडल बना लिया। ही वॉज जस्ट स्टार्टिंग टू गो आउट। अब वो बस जाने ही वाला था। ही हैड जस्ट पुट 1 foot आउट ऑफ द गैप he had made in the window when he saw अटीला। बस वो घर से बाहर जाने ही वाला था, खिड़की से बाहर निकलने ही वाला था, तभी उसने किसको देखा, अटीला को देखा। When he saw अटीला स्टैंडिंग below, जब उसने देखा कि अटीला नीचे खड़ा हुआ है, लुकिंग अप एक्सपेक्टेडली, और उसकी तरफ देख रहा है। रांगा थॉट हिज एंड हैड कम। रांगा ने सोचा कि अब उसका क्या आ गया है, अंत आ गया है। नाउ बेटा, रांगा ने ऐसा क्यों सोचा कि उसका अंत आ गया है? बिकॉज ही वॉज नर्वस टू सी द डॉग, क्योंकि डॉग को देखकर वो नर्वस हो गया और उसने सोचा कि नाउ डॉग बिगेन टू बार्क। अब डॉग क्या करने लगेगा, भौंकने लगेगा। और when he was begin to bark, the all family members woke up। जब वो भौंकेगा तो सभी मेंबर्स, जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो जाग जाएंगे और उसको अरेस्ट करवा देंगे। तो यहाँ पर अटीला ये बात सोचकर काफ़ी नर्वस हो गया। ही एक्सेप्टेड द डॉग टू वार्क। उसे उम्मीद थी कि डॉग क्या करेगा, वार्क करेगा। बट नॉट अटीला, लेकिन अटीला ने ऐसा नहीं किया। ही वेटेड फॉर अ मोमेंट। उसने एक पल के लिए इंतज़ार किया। ग्रू टायर्ड ऑफ वेटिंग। जब वो इंतज़ार करते हुए थक गया, स्टूड अप एंड पुट हिज फोर पॉज ऑन द लैप ऑफ द बर्गलर। तो उसने अपना आगे का पैर बर्गलर के पास रखा। ही पुट बैक हिज ईयर्स। उसने अपने ईयर्स को नीचे किया। लिक्ड रांगाज हैंड। उसने रांगा के हाथ को चाटा। लिक्ड माने ये जो डॉग वगैरह होते हैं ये लिक करते हैं बेटा। हैंड्स को उसने इन हिंदी बोलेंगे हम, उसने उसको टच किया, उसके हाथ को। बाई द
टंग, उसने अपनी जीभ से उसके हाथ को स्पर्श किया। एंड रोल्ड हिज आइज, और अपनी आंखों को नीचे किया। रांगा विस्पर्ड, आई होप यू आर नॉट गोइंग टू बार्क। अब रांगा ने धीरे से कहा कि मुझे उम्मीद है कि अब तुम भौंकने वाले नहीं हो। डोंट यू वरी, चिंता मत करो। आई एम नॉट द सॉर्ट द डॉग ट्राई टू से। डॉग यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है कि आप परेशान मत हो। डोंट यू वरी, आई एम नॉट द सॉर्ट मीन्स आई डिड नॉट वर्क, आई विल नॉट वर्क, मैं नहीं भौंकूंगा। जस्ट अ मोमेंट, एक पल के लिए। लेट मी गेट डाउन फ्रॉम हियर सेड द बर्गलर। बर्गलर ने कहा कि बस मुझे यहाँ से थोड़ा निकल जाने दो। द डॉग ऑवलिंगली टुक अवे हिज पॉज एंड लोअर्ड हिमसेल्फ। बेटा मीन्स ऑवलिंगली मीन्स हेल्पफुली। द डॉग हेल्पफुली टुक अवे हिज पॉज, डॉग उसकी हेल्प करते हुए अपने पंजे को पीछे कर लेता है और पीछे हट जाता है। सी देयर सैड रांगा, रांगा ने इशारा किया, वहाँ देखो। पॉइंटिंग टू द बैक यार्ड, उसने पीछे की तरफ इशारा किया। देयर इज़ अ कैट, वहाँ एक कैट है। अटीला पुट अप हिज ईयर्स एट द मेंशन ऑफ द कैट एंड डैश्ड इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड। अटीला ने इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दिया और वो बड़ी तेज़ी से उस डायरेक्शन की तरफ दौड़ा जहाँ पर कैट के लिए इंडिकेशन किया गया था। वन माइट ईजिली हैव थॉट ही वॉज गोइंग टू टीयर अप अ कैट। उसकी स्पीड को देखकर एक व्यक्ति ऐसा अंदाज़ा लगा सकता था कि वो कैट को क्या कर देगा, टीयर अप मीन्स उसे चीड़ देगा, फाड़ देगा उसे, कैट को, मतलब उस पर अटैक करेगा। बट एक्चुअली ही डिड नॉट वॉन्ट टू मिस द प्लेजर ऑफ द कंपनी ऑफ अ कैट इफ़ देयर वॉज वन। बट एक्चुअली, लेकिन वास्तव में, ही डिड नॉट वॉन्ट टू मिस द प्लेजर, वह उस खुशी को, उस एन्जॉय को, उस हैप्पीनेस को वो मिस नहीं करना चाहता था। ऑफ द कंपनी, उस संगति को, ऑफ अ कैट इफ़ देयर वॉज वन, यदि वहाँ पर कोई कैट होती। मीन्स वो कैट पर अटैक नहीं करना चाहता था, वो तो बस उसकी कंपनी को महसूस करना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था। एज सुन एज द डॉग लेफ्ट हिम रांगा मेड अ डैश फॉर द गेट। जैसे डॉग ने उसको छोड़ा, रांगा गेट की तरफ दौड़ पड़ा। गिवन अ सेकेंड मोर ही वुड हैव होप्ड ओवर इट, बट द डॉग टर्न्ड एंड सॉ व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। अभी थोड़ा ही टाइम हुआ था कि वो बाहर निकला ही था, तभी डॉग पीछे मुड़ा और उसने देखा व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। एंड इन वन स्प्रिंग वॉज एट द गेट, और वो सीधा उछलता हुआ कहाँ पहुँचा, सीधा डायरेक्शन में गया गेट की में। ही लुक्ड हार्ड, इज़ दिस प्रॉपर, उसे ऐसा लगा, उसे काफ़ी मतलब हर्ट हुआ, वो परेशान हुआ और उसने सोचा क्या यह सही है। ही सीम्ड टू आस्क, वह ऐसा पूछने वाला था। कौन पूछने वाला था? ये ऐसा किसको लगा कि ये सही बिहेवियर नहीं है, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर बिहेवियर। डू यू वॉन्ट टू शेक मी ऑफ, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? मीन्स बेटा, इट इज़ द फीलिंग ऑफ द डॉग अटीला, ये अटीला डॉग की फीलिंग थी। क्यों, किसके प्रति फीलिंग थी? ही वॉज थिंकिंग अबाउट रांगा, रांगा ने उसको छोड़ दिया था ना, उसको डायरेक्शन दिखा दी थी कि देयर वॉज अ कैट, वो उस तरफ इंडिकेशन किया और वो बाहर निकल गया। तो ऐसा सोचकर डॉग को काफ़ी बेकार लगा। ही हंग हिज हैवी टेल डाउन सो लूजली एंड लुक्ड सो मिजरेबली एट द बर्गलर स्ट्रोक्ड हिज हेड एट विच ही रिवाइव्ड। उसने अपनी हैवी टेल को नीचे किया और बर्गलर की तरफ देखा, जहाँ से उसने उसको क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। बड़ी दयादीन, मतलब कहते हैं ना, एक बहुत ही ऐसा दृश्य, मिजरेबल दृश्य उसने बना दिया। द बर्गलर ओपन द गेट एंड वेंट आउट, बर्गलर ने गेट खोला और वो बाहर निकल गया। एंड द डॉग फॉलोड हिम, और डॉग ने भी उसका पीछा किया। अटीलाज ग्रेटेस्ट एम्बिशन इन लाइफ वॉज टू वॉन्डर इन द स्ट्रीट्स फ्रीली। अटीला जो डॉग है, उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ी एम्बिशन है, ग्रेटेस्ट एम्बिशन। एम्बिशन बेटा विश, उसकी एक इच्छा है, टू वॉन्डर इन द स्ट्रीट्स फ्रीली, कि वो गलियों में फ्री होकर घूमे। नाउ थिंग्स सीम टू बी शेपिंग अप आइडियली। अटीला liked his new friend so much that he would not leave him alone even for a moment. Now Attila liked his new friend so much. अटीला जो है अपने न्यू फ्रेंड, who is new friend बेटा of Attila? Ranga. Ranga is the new friend of Attila.
तो अटीला अपने न्यू फ्रेंड रांगा को बहुत ज़्यादा लाइक करता है और उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। ही ले बिफोर रांगा वैन ही सैट डाउन टू ईट, वो वहीं लेट जाता है जहाँ रांगा बैठकर खाता है, सोता है। एंड सैट ऑन द एज ऑफ हिज मैट, वह उसी की मैट मीन्स बेटा चटाई जो होती है उसको बोलते हैं हिज मैट। वैन ही स्लैप्ट इन हिज हट, जहाँ वो अपनी हट में सोता है। वेटेड पेशेंटली ऑन द एज ऑफ द पॉन्ड, उसका पॉन्ड पर पेशेंस के साथ इंतज़ार करता है। वैन रांगा वेंट देयर नाउ एंड देन फॉर अ वॉश, जब रांगा वहाँ पर वॉथ के लिए जाता है, बात करने के लिए जाता है। स्लैप्ट ऑन द रोड साइड वैन रांगा वॉज एट वर्क, और जब रांगा वर्क करता है तो वो रोड साइड उसके रोड के किनारे ही सो जाता है। दिस सॉर्ट ऑफ कंपेनियनशिप गॉट रांगाज नर्वस, लेकिन ये जो कंपेनियनशिप है, उसका जो साथ रहना है, ये रांगा को नर्वस करता है, नर्वस बना देता है। ही इम्प्लोड बेटा, इम्प्लोड मीन्स रिक्वेस्ट करना, बैग करना। ओ डॉग, अरे डॉग, लीव मी अलोन फॉर अ मोमेंट, मुझे एक पल के लिए तो अकेला छोड़ दो। वॉन्ट यू, क्या तुम नहीं छोड़ोगे। अनमूव्ड अटीला सैट बिफोर हिम, और बिना हिले हुए अटीला फिर से उसके पास बैठ जाता है। विथ हिज आइज ग्लूड ऑन हिज फ्रेंड, और वो अपने फ्रेंड की तरफ देखने लगता है। अटीलाज डिसअपीयरेंस क्रिएटेड अ सेंसेशन इन द बंगला। नाउ बेटा, अटीलास के जो डिसअपीयरेंस है मीन्स अटीला का जो घर से चला जाना है, मिस हो जाना है, इससे घर के अंदर बहुत ज़्यादा सेंसेशन पैदा हो जाती है, क्रिएटेड हो जाती है। डिडंट आई टेल यू, द मदर सैड, मदर कहती हैं कि मैं बता नहीं सकती, टू लॉक हिम अप, मैंने आपसे पहले ही कहा था। डिडंट आई टेल यू, क्या मैंने आपको नहीं बताया था, टू लॉक हिम अप, कि उसको लॉक कर देना। नाउ सम वर्गलर हैज़ गोन अवे विद हिम, अब कोई वर्गलर आया, कोई थीप आया और उसको अपने साथ ले गया। व्हाट अ शेम, व्हाट अ बैड, व्हाट अ शेम, वी फेल्ट सेम, वी कैन हार्डली मेंशन इट टू एनीवन, कि कितनी शर्म की बात है, दैट वी कैन नॉट टेल अबाउट दिस इंसिडेंट टू एनीवन, हम इस इंसिडेंट के बारे में किसी को बता भी नहीं सकते। यू आर मिस्टेकन, रिप्लाइड द डिफेंडर। नाउ द यंगेस्ट सन replied that mother you are on mistaken, it is just coincidence, ये केवल coincidence से हुआ है, ऐसा नहीं है कि थीप उसको साथ ले गया है। he must have gone off on his own account, वह अपनी विश से बाहर गया है। if he had been here no thief would have dared to come in, यदि वो यहाँ होता तो किसी थीप की हिम्मत नहीं थी, डेयर नहीं थी कि वो अंदर आ जाता। whatever it is, जो भी हुआ, I don't नो, मैं नहीं जानती। इफ़ वी शुड आफ्टर ऑल थैंक द थीप फॉर टेकिंग अवे, लेकिन जो भी है, अगर वो उसको थीप ले भी गया है तो उसको धन्यवाद है। दैट डॉग ही मे कीप द ज्वेल्स एज अ रिवार्ड फॉर टेकिंग हिम अवे, क्योंकि उसने जो ज्वेलरी ली है उसके साथ साथ रिवार्ड में उसको डॉग भी मिल गया। शैल वी विड्रॉ द पुलिस कंप्लेंट, क्या हम पुलिस को कंप्लेन कर सकते हैं, मतलब पुलिस को भी कंप्लेन नहीं कर सकते। बिकॉज बेटा हियर द मदर फेल्ट शेम ऑन दिस इंसिडेंट, क्योंकि यहाँ पर जो मदर है बेटा वो इस इंसिडेंट से काफ़ी शेम फील कर रही हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मतलब घर में इन द हाउस एक डॉग के होते हुए चोरी भी हो गई और डॉग भी उसके मतलब डॉग भी नहीं है, तो इस बात से वो काफ़ी परेशान है। ही वॉज वेरी नर्वस टू हियर अबाउट द डॉग एंड अबाउट मिस ऑफ द डॉग इन द हाउस, डॉग के मिस हो जाने से वो काफ़ी परेशान है। दिस फेस्टिवसनेस ceased a week later. Fastidiousness बेटा not being serious about a serious subject means यहाँ पर अब इस सब्जेक्ट को लेकर कोई ज़्यादा सीरियस नहीं है। अबाउट अ वीक लेटर, एक वीक के बाद अटीला रोज टू द रैंक्स ऑफ अ हीरो, अटीला क्या बनने वाला था, हीरो बनने वाला था। द एल्डेस्ट सन ऑफ द हाउस वाज गोइंग टू वाज द मार्केट वन डे, एक दिन क्या हुआ, जो एल्डेस्ट सन है और फैमिली में सबसे बड़ा बेटा, वो मार्केट गया हुआ था। ही सॉ अटीला ट्रॉटिंग बिहाइंड समवन ऑन द रोड, उसने अटीला को किसी का पीछा करते हुए देखा, फॉलो करते हुए देखा। मीन्स अटीला किसी के पीछे
चल रहा था, जा रहा था। हे साउटेड द यंग मैन, उस एल्डर सन ने कॉल अप किया, उसको आवाज़ दी। हे एट विच रांगा टर्न्ड, इस पर रांगा ने पीछे मुड़कर देखा। एंड ब्रोक इनटू अ रन, और वो तेज़ी से क्या करने लगा, भागने लगा। अटीला हु ऑलवेज सस्पेक्टेड दैट हिज न्यू फ्रेंड वॉज वेटिंग फॉर द स्लाइएस्ट चांस टू डेजर्ट हिम। अटीला हमेशा इस बात से कंफ्यूज रहता था कि उसका न्यू फ्रेंड उससे दूर रहने के लिए हमेशा परेशान रहता। मीन्स वो कोई ना कोई चांस चाहता है उसको छोड़ने का। गैलॉप्ड बिहाइंड रांगा, और वो ब्लाइंडली मीन्स बहुत मतलब उसने जब ऐसा सोचा तो वो रांगा के पीछे दौड़ने लगा। कौन दौड़ने लगा? अटीला। नाउ हे अटीला साउटेड द यंग मैन, अब अटीला को जो यंग मैन है उसने आवाज़ दी। एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड रनिंग, और अटीला ने भी क्या कर दिया, ऑल्सो स्टार्टेड रनिंग, उसने भी रनिंग करना स्टार्ट कर दिया। अटीला वांटेड टू आंसर द कॉल, अटीला उसका जो कॉल की थी मीन्स उसने उसको बुलाया था, उसका आंसर देना चाहता था। आफ्टर मेकिंग श्योर ऑफ हिज फ्रेंड, लेकिन पहले वो अपने फ्रेंड को श्योर करना चाहता था, मीन्स अपने फ्रेंड को पकड़ना चाहता था। एंड सो ही टर्न हिज हेड फॉर अ सेकेंड एंड गैलॉप्ड फास्टर, और इसलिए उसने अपना सिर पीछे तेज़ी से घुमाया और ही बिगेन टू रन फास्टली। रांगा डेस्परेटली डबल्ड हिज पेस, अब रांगा ने अपनी स्पीड को क्या कर दिया, तेज़ कर दिया। अटीला डिटरमाइंड टू स्टिक टू हिम एट एनी कॉस्ट, बट हियर अटीला वॉज ऑल्सो डिटरमाइंड टू कैच हिज न्यू फ्रेंड एट एनी कॉस्ट। जो अटीला था वो भी अपने फ्रेंड को पकड़ने के पूरे तरीके से डिटरमाइंड, उसने मन बना लिया था कि मैं रांगा को नहीं छोड़ूंगा। और रांगा ने क्या किया था, अपनी स्पीड को बहुत तेज़ कर दिया था। एज अ रिजल्ट ही रेन सो फास्ट दैट ही ओवरटुक रांगा, और इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि वो इतनी तेज़ दौड़ा। कौन दौड़ा बेटा? अटीला इतनी तेज़ दौड़ा कि उसने रांगा को पीछे छोड़ दिया। एंड क्लम्सली ब्लॉक्ड हिज वे, और उसका रास्ता रोक लिया। एंड रांगा स्टम्बल्ड ओवर हिम एंड फेल, और रामा को उसके ऊपर जाकर ठोकर लगी और वो फेल ऑन द ग्राउंड, वो ज़मीन पर गिर गया। एज ही रोल्ड ऑन द ग्राउंड अ पीस ऑफ ज्वेलरी विच ही वॉज टेकिंग टू अ रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, जैसे ही उसको ठोकर लगी और वो ज़मीन पर गिरा, जो ज्वेलरी थी, वैल्यूएबल ज्वेलरी दैट वाज स्टोलन बाय द हाउस ऑफ द यंगेस्ट सन, जो ज्वेलरी थी जो उस यंगेस्ट सन के घर से चुराई गई थी, वो उसके हाथों से गिर गई। फ्लू फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथों से गिर गई। द यंग मैन रिकॉग्नाइज इट एज बिलोंगिंग टू हिज सिस्टर, अब यहाँ पर जो यंग मैन था उसने उस ज्वेलरी को पहचान लिया, दैट इट इज़ बिलोंगिंग टू हिज सिस्टर, एंड सेट डाउन ऑन रांगा, और वो रांगा के पास आकर बैठ गया। अ क्राउड कलेक्टेड एंड द पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन, भीड़ इकट्ठी हो गई और पुलिस ने रांगा को क्या कर लिया, अरेस्टेड, मतलब उसको अरेस्ट कर लिया। नाउ अटीला वाज द हीरो ऑफ द डे, और उस दिन अटीला क्या बन गया, हीरो बन गया। बिकॉज रांगा वाज कॉट ड्यू टू अटीला, क्योंकि रांगा जो चोर था वो अटीला की वजह से पकड़ा गया। इवन द लेडी ऑफ द हाउस सॉफ्टन टुवर्ड्स हिम, अब यहाँ जो घर की लेडी थी, जो मदर थी, वो भी अटीला के प्रति क्या हो गई, सॉफ्ट हो गई। हिज नेचर हर नेचर आल्सो चेंज टू अटीला, जो मदर है उनका नेचर भी अटीला के प्रति क्या हो गया, बदल गया। सी सैड वाट एवर वन माइट से ऑफ अटीला, उन्होंने कहा कि कोई भी अटीला के लिए कुछ भी कहे, वन हैज़ टू एडमिट डैट, लेकिन हम सभी को ये स्वीकार करना होगा, दैट ही इज़ अ वेरी कनिंग डिटेक्टिव, कि वो बहुत ही अच्छा क्या है, जासूस है। नाउ अटीला बिकेम द डिटेक्टिव ऑफ द फैमिली, he is too deep for words. It was as well that Attila had no powers of speech. अब अटीला इतना खुश था, उसकी इतनी प्रेज हुई कि उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। He has no words to represent his praise. उसके पास वर्ड्स नहीं थे अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। अदरवाइज ही वुड हैव ब्रश्ड
into a lamentation, beta lamentation, an expression of great sadness, which would have shattered the pedestal under his feet. The base that statue rests on. और वो बस क्या करता है कि एक स्टैच्यू की तरह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है. पेडिस्टल लाइक अ स्टैच्यू. बेटा दैट यू कैन सी इन द पिक्चर, ही इज़ स्टैंडिंग लाइक अ स्टैच्यू इन फ्रंट ऑफ द मदर. वो अपनी जो उसने किया फैमिली में कि कभी किसी पर वार्क नहीं किया, अपना डेंजरस बिहेवियर नहीं दिखाया, आफ्टर लुकिंग आफ्टर नहीं की घर की, तो उस चीज़ के लिए वो स्टैचू की तरह मदर के सामने खड़ा हो जाता है. Now beta, after reading the chapter from your textbook, I hope you all understand the story very well. Still you have any query about the chapter, you can ask me in your doubt class. And beta, I hope you enjoyed the story very well and understand about the story that is written by the famous writer R.K. Narayan, is liked by you. So that was all for today. Thank you.